record on this computer. Yeah, correct. So we have seen what is Sensex and what is Nifty. Now we shall continue to see a bit more about a bit of mid cap and small cap. So what is the major difference between a mid cap and a small cap? When a market is in its rising phase, when a market is in its rising phase, you will see that more rally usually happens in small cap, then in mid cap, and then in large cap. But when the market begins to rally, the first leg of rally will always come from the large cap. Then it is mid cap, then it is small cap. So our interest area is that what are different types of stocks that are available in mid cap and small cap. So there is something called as classification. We have done some classifications like uh, SEBI has notified that first 100 companies by market value, first 100 companies by market value will be referred as large cap. Just a second. Just a second. Yeah, I'll go here. I'll share the screen. Mm, mm, are you able to see Nifty? Nifty mid cap 150. Nifty mid cap 150. So Nifty, see, you can clearly see what is written here. Nifty mid cap 150 compromises of companies ranked from 101 to 250. This is what I told you. Government has classified companies based on market cap from 0 to 100 from market cap are referred as large cap. From 101 to 250 are referred as mid cap. So you can see here some distribution. You can see here what is the distribution of different. So if I take mid cap, mid cap is made up of what all components. So you can clearly see mid cap is made up of, in the mid cap, 18% contribution is done by financial services. 15% contribution is done by capital goods. Correct? Can you see all? Automobile components contributes for 7.5%. Like this way, there are so many different sectors. These all sectors make mid cap. So what are the stocks now? To understand what all stocks exist, then we can see more detail here. I think so. I can download the index contributors. I will open the list. It will get downloaded here. Yeah, I will open the Excel. I think so. Excel is not visible. Let it get downloaded. Yes, here. Now I will share the screen. I think so. You'll not be able to see. I will share the Excel sheet. Hold on. Yeah, not visible. Correct. I'm sharing it. Yeah. You're able to see? Are you able to see? What is the first company? 3M. 3M, ACC, AI Engineering, AU Small Bank Finance. 2 o'clock in the night. Correct? Ajanta Pharma, Alchem Labs. You can see here industry. You can first see here. He comes every day watching. You can see the company. Class mugili. Hold on. I'll have to. Now it is fine. So we can see here different companies. What are the different companies that make
mid cap sectors. I'm just scrolling down to have a look. Correct. You can see here the sectors. And here you can see the symbols and the ISIN code does not matter. So this contributes for mid cap. Till here, am I okay? Any doubt anyone has? Then I'll continue further. So we saw what are mid caps. Mid cap contributes to first 101 से लेके 250 तक together contributes for mid cap. Next, we'll see small cap. So small cap, anything which is after 250 onwards. I mean 0 to 100 and 0 to 100 is large cap. 101 to next 250, that is 350 is mid cap. Post 150, everything comes under small cap. Till here, anyone has any doubt? If no, we can go ahead. So can you Actually, repeat the just small repeat cap? that. Sorry, at a time one. Small cap, anything after 350 is referred as small cap. After Arjun, someone else said. Actually, I said that. So just repeat once again. Okay. From 0 to 100, we saw the top market capitalization. Whose market capitalization is highest? Reliance, right? Yes, sir. So from Reliance, we start company number one. So first is Reliance. Come down to HDFC, TCS, go on in decreasing order of market cap from 0 to 100 is referred as large cap. From 101 to next 250. 101 to next 250 means 101 plus 150 becomes 250. So that is mid cap. After 150, I mean 0 to 100, large cap, 101 to 150, that comes out to be 250 is mid cap. From 250 onwards, we refer things as small cap. Till here it is clear? Any doubt? yes, exactly. Okay, perfect. Then we continue. Now today's class is basically we'll be concentrating on identifying different sectors. I think so in the previous class when we were about to close, I said I got bank Bs. Now today a bit of things. I'm not a great person with respect to charts the way Abhishek sir does. I have zero knowledge of chart. I have to learn yet, but I am good at identifying sectors. So I was able to identify a few sectors. How did I do? I'll just share those views. So maybe you can apply your viewpoints. We will take one sector into picture, and the sector movement has some correlations with few economic and political things that happens across the globe. We'll take one example to understand. Okay. So if you remember, um, we had COVID coming in, and due to COVID, we realized that everything would get shut down, and we would everything the whole world would come to a halt, and everybody would have to work from home. Now, अगर वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा तो आईटी कंपनी को बहुत बूस्ट मिलेगा क्योंकि दे हैव टू वर्क ऑन टेक्नोलॉजी. So what is one observation? What is one correlation I found? So we'll take one graph of ITBs. I'm just typing ITBs. ITBs. We'll open the graph of ITBs. Yes. Sir, can you screen share? I'll yet allow me to first open, then I'll share the screen. Yeah. So see here, I'll explain a bit. So I cannot explain you the supports, the things that Abhishek sir told. I cannot do that, but I think so. Data for ITB is available from 2022. We'll take things. So I will take Nifty ITBs. Hold on. We'll take one IT company to understand. Then we'll take. Yes.
Correct. We'll open one more graph to understand here better. We'll take one pharma. We'll take one pharma company. We'll take one chemical companies. Alkyl amines. Alkyl amines. Yes. We'll take one more. We'll take bank. We'll take anyone. Sun Pharma, sir. You can take. कोई बात नहीं. I will take one bank. We'll take one ICICI bank. And see how sector rotation happens. Yes. Now it will be easy to compare. Right. We'll go with alkyl amines. You knew that when COVID hit in, सबको सैनिटाइजर चाहिए था. तो केमिकल कंपनीज को बहुत अच्छा बिजनेस आने लगा. Now you see the graph. We hit COVID. Anyone exact date? I remember when Modi announced March 22nd. March The 22nd. 22nd March, yeah. 2020, right? Sir, yes, Yes. 2020. 2020. So here 20, it sir. is 20. 2020, right? Yes, sir. Correct. So if you see, I don't know if you're able to see here. I'm at Feb. I'm at March. I'm at 23rd March. See the rate. See the rate of alkyl amines. At 2020 March 20 it is showing 501 rupees. Am I right? Are you able to see all 501 rupees? Yes, sir. The COVID hit in. How the everybody knew that हमको sanitizer चाहिए. See the way it rallied. So from 500, the stock went on to become 4,000. 4,000. 2001 तक 2021 तक अगस्त तक I think so COVID had two phases. I think so 2021 मार्च या जून तक खत्म हो गया था COVID. If I'm not wrong, it went on to 1.5 years. मई तक चला. If I'm not wrong, मई 2021 तक चला. COVID पीक में था. हाँ. Yes. So you can see the rate, it was around 3,600, 3,700. It went one more rally, it went till 4,300. जैसा ही कोविड खत्म हुआ, सैनिटाइजर के सेल्स कम हो गए. सैनिटाइजर के सेल्स कम हो गए, केमिकल कंपनीज को सेल्स कम हो गए. तो केमिकल कंपनीज वेंट फॉर अ डाउन साइकिल. You can see how the stock kept on falling. So what is one learning we get here? We get a learning that some sectors or most of the sectors are cyclical in nature. This is today's class all about. See, I'm trying to repeat. Some of the sectors or themes are always cyclical in nature. What do you mean by cyclical in nature? उनका एक particular cycle आता है. वो cycle में the stock rallies, it reaches uptrend. Once the cycle is over, it enters into a downtrend phase. This is one example. So what are the factors? Now my point is, we should be able to anticipate. We should be able to take a call before the rally happens, and that is where your intelligence comes into picture. जैसा ही कोविड हिट हुआ, हमारा ब्रेन हिट करना चाहिए था कि अब सैनिटाइजर होगा. एग्जाम्पल एक है, तो केमिकल कंपनीज को बिजनेस बहुत अच्छा मिलेगा. जब केमिकल कंपनी को बिजनेस अच्छा मिलेगा, तो उसे इफेक्ट क्या होगा कि जो केमिकल के बिजनेसेस में है उनके अर्निंग्स अच्छे आएंगे. जब उनके अर्निंग्स अच्छे आएंगे, क्यों अर्निंग्स अच्छे आएंगे? क्योंकि सेल्स बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो सेल्स बढ़ने पर, वॉल्यूम्स बढ़ने पर क्या मिलेगा? प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा. जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, then what will happen? The outcome is results will be great. Quarter to quarter results will be great. So, अच्छा, anyone has a doubt? What do I mean by quarter on quarter? QOQ, QNQ? Everybody knows what do you mean by QNQ? No, sir. अच्छा. 3 months. अच्छा, करेक्ट है तुषार. पॉइंट इतना ही है तुषार कि व्हाट माय पॉइंट इज, शेयर मार्केट में देयर इज अ सिस्टम, एंड द सिस्टम सेज दैट every quarter you have to disclose your earnings. You can see here, I think so, more about मैं screener में गया तो भी चलेगा. You'll be able to do, yeah, here you can see. Are you able to see financials?
इन दैट फाइनेंशियल क्वार्टरली फाइनेंशियल रेवेन्यू मीन्स इस कंपनी ने कितना सेल किया था. सो यू कैन सी जून 2024. दिस इज वाई एंड वाई. व्हाट डू यू मीन बाय वाई एंड वाई? वाई एंड वाई बेसिकली रेफर्स टू ईयर ऑन ईयर. See revenue matlab in a particular that particular month. Okay, you can go actually, you can open screener and we can see sales that happened in COVID. Then you can compare the sales that happened in COVID and you compare the sales that happened this June 2024. You'll find a change. So here, see here, revenue was around 400 crores. It made a sales of 400 crores. Compared to last year, it was down by 2.43%. You can see the previous sales. Previous sales in March 2024. Say, did it give a better result? Yes. Earning per share is more. You can see earning per share, EPS. What do you mean by EPS? EPS, earning per share. What is earning per share? We'll be seeing in the next classes, not now. So I just want to give a comparison. Ki revenue kitna aaya tha. Now, if revenue increases, obviously profitability will increase, assuming there are no other some other what do you say, capex happening. So what do you mean by capex? Anybody can tell what do you mean by capex? In share market channel, if you watch Z News, बहुत जगह तुम्हें दिखेगा वो सामने वाला एंकर बोलेगा ये कंपनी कैपेक्स कर रहा है. What do you understand by capex? Expenditures. कैपिटल एक्सपेंडिचर. मतलब कंपनी क्या कर रहा है, नया प्लांट लगा रहा है. फॉर एग्जांपल टाटा स्टील है, टाटा स्टील का प्लांट पूना में है. एग्जांपल टाटा स्टील का बैंगलोर में है. अब टाटा स्टील सोचता है मुझे सेल्स बहुत आ रहे हैं, मुझे रिक्वायरमेंट आ रहा है, मुझे डिमांड आ रहा है. सो आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ डिमांड, सो व्हाई नॉट डू कैपेक्स. सो कैपेक्स मीन्स व्हाट? कंपनी हैज अ विजिबिलिटी ऑफ इट्स what of its sales. कंपनी एज ए विजिबिलिटी ऑफ इट सेल्स कि उसको पता है इस कंपनी को खुद को धंधा आएगा. क्यों? क्योंकि डिमांड इतना आ रहा है और हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए माल उतना ही है. सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, द कंपनी प्लान्स टू sorry, the company plans to open a new factory or a new setup of plant, and that is called capex. So capex is an indication. Capex, when you hear in market channel, many corporates are doing capex, it indicates that the country's economy is in the right track. So this is one indication. So I gave one example of Akyl Amines. We'll see TCS also. See TCS में you can see कोविड 1800-1600 का भाव था. ओके, यू कैन से 1800 का 1800 का भाव था. 1800 का भाव था. व्हाट हैपेंड? कोविड हिट, वर्क फ्रॉम होम हैपेंड. वर्क फ्रॉम होम की वजह से आईटी कंपनीज को बहुत ज्यादा बिजनेस आने लगा. एवरीवन वेंट ऑन टू सॉफ्टवेयर, सबका वर्क फ्रॉम होम चलने लगा. स्टॉक रैलीड, इट वेंट ऑन टिल 3800. नाउ सी द ब्यूटी. अगर आपने इस भाव पे एंटर किया होता 1800 और अगर आपने इस भाव पे एग्जिट किया होता 3800, नॉट कोविड, चलो आई डोंट नो इसका पीक कब है. डू यू नो दैट आई शुड एग्जिट एट दिस भाव ओनली, एट दिस रेट ओनली 3800? आई डोंट नो, बट मुझे एक आइडिया आया था. क्या आया था? आई एम नॉट टेलिंग माई केस, आई एम जस्ट टेलिंग यू. आई न्यू दैट कोविड खत्म होने के बाद एवरीथिंग वुड चेंज, विल बी बैक टू ऑफिसेस. तो आईटी कंपनीज को जो बिजनेस आना था एक वन अपटिक हो चुका होगा. अकॉर्डिंग टू यू कोविड का लास्ट फेज कब तक पकड़ो? आप बोलो कब तक पकड़े? 3200 तक पकड़ो. कब तक खत्म हुआ था? जुलाई, May 2021. मई 2021, जून जुलाई पकड़ता हूँ. चलो जून जुलाई पकड़ता हूँ. तो रेट वॉज 3000, 3300, 3200. अगर मुझे पता चला कि कोविड खत्म हो गया, आई वुड एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक. तो द स्टॉक एग्जिट प्राइस वुड बी, द एंट्री प्राइस वुड बी 1800. 1800 से लिटरली 80% इज 3200. मैं 3200 में एग्जिट करता हूं. चलो 3200 मैंने एग्जिट किया. अब अगर मैं होल्ड करता होता, डिड आई मेक एनी मच ग्रेटर रिटर्न? 2021, 22, 23, 24, 3 साल हो गए. 3 साल में देखो, यू कैन सी द भाव वो 3800, 3330 पे ही था. मतलब लास्ट ईयर अक्टूबर तक भी वही रेट था. मतलब आई एम होल्डिंग फॉर 2 years, आई हैवंट मेड एनी रिटर्न. So it's foolish that I would still stay invested because 2 साल में वही भाव था 3300. 6 अगस्त 2021 को भी 3300 है. एंड
10th, you can see August or October को, you can see one rate here. I'll show you 3,300. November को भी 2 years down the line, 2.5 years down the line, the rate is still the same. Okay. Now suppose अगर मैंने ब्रेन चलाया होता, how would I have thought? चलो कोविड खत्म हुआ है, you tell me your experience. कोविड खत्म होने पर 2 साल करीब करीब हम कहीं पर भी बाहर नहीं गए होंगे. After COVID, what happened? Anybody can guess? टूरिज्म सेक्टर बूम होगा. टूरिज्म सेक्टर बूम होगा. टूरिज्म सेक्टर क्यों बूम होगा? 2 साल लोग घर पे बैठ के पागल हो गए. जब टूरिज्म सेक्टर बूम होगा तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? कौन से सेक्टर्स को बिजनेस ज्यादा आएगा, किसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे? यू टेल मी. Hotel industry, होटल food इंडस्ट्री, industry, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी. food, हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री आ गया. स्पीक मोर. और सोचो थोड़ा. ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट में यानी कौन आएगा? ट्रांसपोर्ट में कौन आएगा? एयरलाइंस आएंगे. एयरलाइंस आएंगे. airlines, एयरलाइंस. हाँ सर. एयरलाइंस वाले आएंगे. तो एक काम करते हैं, हम एक और चार्ट देखते हैं. हम एक कंपनी देखते हैं, इंडियन होटल्स. इंडियन होटल्स आज के, डू यू नो इंडियन होटल्स? इंडियन होटल्स में तो इंडियन होटल्स के बैनर में कौन कौन से होटल्स आते हैं? एनीबडी हैज एन आइडिया? जस्ट विल सी. इंडियन होटल्स, इंडियन ताज. होटल्स में कौन आता है? चलो इंडियन होटल्स में कौन कौन आ गया? होटल्स में इंडियन होटल्स इज बेसिकली ताज. करेक्ट. ताज True. सिलेक्शन. करेक्ट. तो विल करेक्ट, इंडियन होटल्स यानी ताज पे आ गया. तो विल सी इंडियन होटल्स के स्टॉक आफ्टर कोविड, हाउ डिड इट रैली? See the beauty when COVID hit 2022. See, वो कहीं पर नहीं था. मतलब रेट, you see the rate, you will not find any big uptick. हाँ, कोविड के टाइम कोविड हिट हुआ 6 मार्च 117 120. चलो 120 का भाव पकड़ो. 6 March 2020 द रेट इज 120 के करीब. Now you see even after the COVID is over, what is the rate? Even after COVID is over, what is the rate you can see? 134. 134. मतलब क्या एक साल में इस स्टॉक में क्या रिटर्न बना? क्या एक साल में स्टॉक में रिटर्न बना? नहीं बना. नहीं बना. कहाँ बना? पहले भी ये मार्च Hardly में 6, 7. 78 रुपीस पे पहुंच गया था. तो उसके No, बाद you don't hit one lowest rate. Don't hit one rate, brother. You see from where it went on. Okay, मार्च में 117 था ना. 117 का रेट क्या रहा? 140 हुआ ना. Same if you compare the same stock with alkyl amines, you will find 300, 400, 500 times return ना. Yes, sir. in compared to hotel sector, because कोविड के टाइम होटल वालों को बिजनेस नहीं था. तो जब होटल वालों को बिजनेस नहीं था तो स्टॉक कैसे भागेगा? करेक्ट. व्हेन कोविड खत्म होने के बाद थिंग्स चेंज्ड. नाउ यू सी द रैली दैट इंडियन होटल्स हैड टू अंडरगो. ट्रू. द रेट फ्रॉम 140 150 went on to become 700. Correct. Yes. So what do we understand? We understand that it is very important to identify the cycles at the right moment. I gave you 2 or 3 examples. We can go on to discuss much more examples. Anyone has a doubt till here? Anyone has a doubt till here? No, sir. Others? So you can give a thumbs up or okay if you're not. Just hold on, stop screen. Yes, all fine. Should I continue? Yes, sir. चलो डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं. So 2 sectors we saw. One was hotel sector, one was IT sector. Next sector what we will see now is we'll understand few technicality about banking. Okay,
banking, and then we'll enter into infra, and then make in India concept. So what do you understand by banking? Tell me, how do a bank earn? बैंक का अर्निंग कैसे होता है? सर वो लोग जो लोन्स पे इंटरेस्ट लेते हैं उसके थ्रू एक अर्न होता है, वो एक वे है अर्निंग के लिए. What all factors should be considered कि ये बैंकिंग स्टॉक अच्छा करेगा कि नहीं अच्छा करेगा? सपोज एग्जांपल के लिए मुझे लेना है बैंक, तो मैं क्या देखूंगा कि मुझे कौन सा बैंक पिकअप बैंक, अगर मेरे को बैंक मेरे मन बना लिया मुझे बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ओके, सो बैंकिंग स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना है तो मैं कौन सा बैंक उठाऊं? आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, कोटक है, एसबीआई है ना, स्मॉल बैंक देना बैंक है, हाँ, एयू बैंक स्मॉल है, एयू स्मॉल बैंक फाइनेंस है. My question to you is, how do I know which banking sector should I choose? In that banking sector, which stock should I choose? What are the parameters that I should take into consideration while I am buying a banking stock? सर Anybody? उसका लिक्विडिटी. Wrong. Anybody else? सर उनका क्वार्टरली NPAs, रिजल्ट्स. Jayesh, and then ma'am, Amruta ma'am. सर Jayesh, उनका क्वार्टरली रिजल्ट्स. उनका क्वार्टर रिजल्ट्स वो तो ठीक है. क्वार्टर रिजल्ट्स देखने से पूरा पिक्चर नहीं मिलता है. देयर आर फ्यू पैरामीटर्स विच यू शुड बी नोइंग. सो बैंकिंग में एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, अमृता मैडम ने कहा, एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स. तो हर एक सेक्टर में पर्टिकुलर चीजें हम देखते हैं, उस चीजों को हम एनालाइज करते हैं. उसी एग्जाम्पल लेता हूं, मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक है, मेरे पास एचडीएफसी बैंक है. इफ यू सी, एक जमाने देर आर, एक तो फर्स्ट बेसिक क्राइटेरिया है, तो बैंकिंग सेक्टर में हम एनपीएस तो देखेंगे ही देखेंगे, नॉन परफॉर्मिंग असेट. व्हाट डू यू मीन बाय एनपीएस? एनीबडी कैन एलैबोरेट प्लीज? एनपीए का मतलब The company has not been making profits, has not been doing well. नो नो नो. एनपीएस मीन्स आज मैंने लोन लिया है और मेरी हालत ऐसे खराब हो गई, loan recovery, लोन मैंने जो लिया है, मेरी क्षमता नहीं है कि मैं पैसे वापस कर सकूं बैंक को. तो क्या बैंक के लिए मैं डिफॉल्टर बन गया? जब मैं बैंक के लिए डिफॉल्टर बन गया तो बैंक को मेरे क्रंच का, जो उन्होंने मेरे को लोन इशू किया है, मैंने 35 लाख का लोन लिया है, तो मेरा 35 लाख का अकाउंट बैंक अपने हिसाब में दिखाएगा नॉन परफॉर्मिंग असेट, मतलब एज अ लॉस, वो डूबत खाता में डालना है, इट्स अ लॉस मेकिंग. तो व्हाट वी सी, कौन से बैंकिंग के रिजल्ट्स में एनपीएस सबसे लीस्ट आएंगे? तो एनपीएस जिसका भी लीस्ट होगा, आई वुड प्रिफर टू हैव such stock in my portfolio. So we'll compare one. So this is one basic. Second basic important for any stock. This is applicable for any stock. So there is one more called as CASA. So if you see CASA ratio, you'll see CASA ratio. Can you see CASA ratio? Correct? Current account and savings accounts. Okay. So what is this CASA ratio? कितने अकाउंट्स खुले हैं? सो कितने अकाउंट्स खुले, इसका क्या आइडिया देता है? जिस कंपनी का कासा रेशियो अच्छा है, सी हियर कासा रेशियो कंपैरिजन, इफ आई टाइप, it says bank CASA ratio shares, CASA share slips from, see, you can see the language. I think so it is, I did not share the screen. I'm sorry. Okay, I'll share it now. Bank's CASA share slips to 700 bips. I think so I made you aware in the last class. What do you mean by bips? What do you mean by bips? Forgot? भूल गए? बिप्स का मतलब क्या है? 100 बिप्स कॉन्ट्रीब्यूट्स 1%. Am I right? करेक्ट है ना? 100 बिप्स कॉन्ट्रीब्यूट्स और, करेक्ट और नो? 100 बिप्स कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉर 1%. 1%. See, we see second is CASA ratio. जितना, here you can see, with high CASA ratio, a financial institution is proven to be more profitable. So second parameter what we see is what is the CASA ratio.
Okay, if you want we can get into detail of हर एक का कासा रेशियो क्या है. जस्ट अगर तुम देखोगे इधर देखो आईसीआईसीआई बैंक का कासा रेशियो 42.14 है, वही एचडीएफसी का 38.19 है, वही एसबीआई का करीब करीब 40 है. नाउ सी आई विल हैव वन कंपैरिजन, विल कम हैव वन कंपैरिजन. एचडीएफसी बैंक इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट renowned bank with least NPAs. Okay, HDFC Bank share price. I'll tell you, see how we took a hit. I had HDFC Bank also, I had and I still have ICICI Bank also. We'll compare both banks. We'll compare 5 years return of both bank. अब मेरे को बैंक में लेना है तो मैं क्या देखूंगा और मैंने क्या देखा और क्या लिया. चलो फर्स्ट HDFC Bank. What was the problem with HDFC Bank? Anybody can tell what was the problem with HDFC Bank in past 2 years? Why the stock has not? You can see the graph. Okay, let's see the graph. The graph in Jan 2021 was 1,400. 1,400, 1,300. We'll take first Jan. First Jan was 1,400. Now see, even after that, at today's rate, after 3 years, correct? Jan 3 साल हो गए. 21 को छोड़ो, 22, 23, 24. What is the rate? 1,700. Same you take ICICI Bank. First Jan 2021. First Jan 2021. First Jan 2021 was 527. And see today's rate 1,306. Can you tell me? See the graph of ICICI Bank. See the graph of HDFC Bank. Anybody can guess? Any guesses? ऐसा क्यों हुआ HDFC के साथ और ऐसा क्यों हुआ ICICI के साथ? I'll give you 1 or 2 reasons. First, उनका कासा रेशियो बढ़ने लगा, ICICI बैंक का कासा रेशियो बढ़ने लगा. Second, HDFC बैंक had a merger. Now what happens? कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होता है ना, तो दे सी कंपनी का गवर्नेंस. सो दिस इज टॉप प्रायोरिटी. दुनिया के कोई भी स्टॉक ले लो, टॉप प्रायोरिटी हमारे लिए गवर्नेंस है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डू आई मीन बाय गवर्नेंस? गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? कंट्रोल सर. कंट्रोल. ओके, और कोई? How they are managing their bank, sir? विथ हाउ दे आर मैनेजिंग देयर सिस्टम, कितना एथिकली, कितना क्लीन वे में कंपनी अपना बिजनेस कर रहा है. एग्जाम्पल विल टेक वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड गवर्नेंस का. एग्जाम्पल विल टेक Yes Bank. You know what is what you know what was Yes Bank at a time? Share price. The cost of Yes Bank, you see it is 22 rupees. You'll be shocked. Yes Bank एक जमाने में निफ्टी का स्टॉक हुआ करता था. मुझे याद है, मैं जब LNT में था, जॉब करता, मैंने यस बैंक के शेयर्स लिए थे. वो टाइम पे यस बैंक का भाव कुछ 300-400 चल रहे थे. 2013-2014 की बात करता हूँ. बिल्ड ओपन मैक्स. सी 2013-2014 स्प्लिट अप करके अभी अलग दिखाएगा. सी द ग्राफ, विल बी शॉक्ड. यस बैंक किधर तक जाके आया है? यस बैंक 393 तक जाके आया है. 393 का आज का भाव 22 है. वाई? वर्स्ट गवर्नेंस. मतलब क्या? There was a man called as Rana Kapoor. Rana Kapoor was a promoter. What do you understand by promoter? Promoter of the company. Promoter of the company यानी क्या? Anybody can tell? Promoter of the company यानी क्या? उसका They एडवर्टाइजमेंट invest money to- करना. एक आदमी, कोई एनी वन पर्सन? रूपा मैम? एडवर्टाइज करना उसका. एडवर्टाइज करना उसका. ओके, नो. They नेक्स्ट. invest money and they are the people who start the bank, sir. ओके, दे आर द हाईएस्ट स्टेक होल्डर्स. मतलब पूरे कंपनी का जो मीटिंग्स होगा, एनुअल जनरल मीटिंग्स होगा, वहां पे डिसीजन मेकिंग का कंट्रीब्यूशन एंड डिसीजन उनके हाथ में ज्यादा रहेगा. वेस्टेड पावर्स. ओके, सो वो ज्यादा स्टॉक्स होल्ड करते, वो ज्यादा परसेंटेज ऑफ स्टेक्स होल्ड करते हैं. जब प्रमोटर्स ही करप्ट है तो डिसीजंस रॉन्ग हो गए. जब प्रमोटर्स ही करप्ट है
तो डिसीजन रॉन्ग होंगे, डिसीजन रॉन्ग हो गए तो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को छोड़ो, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डायरेक्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को ऐसे कंपनी के ऊपर कैसा भरोसा आएगा? सो चेकलिस्ट, स्टॉक सिलेक्शन का बेसिक चेकलिस्ट क्या है? फर्स्ट, चेक हाउ प्रमोटर्स आर, मतलब प्रमोटर्स को अपने धंधे का नॉलेज है कि नहीं है, क्या प्रमोटर्स का डिसीजन मेकिंग क्लीन है, क्या प्रमोटर्स करप्ट नहीं है। नेक्स्ट, प्रमोटर्स करप्ट नहीं होना यानी गवर्नेंस क्लीन होना। सो दिस इज वन एग्जांपल आई टुक कि यस बैंक का प्रमोटर गलत होने की वजह से स्टॉक का प्राइस 330 से 20 रुपए पे आ गया। सेम आई वांट टू टॉक अबाउट आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी। व्हाट वाज अनसर्टेनिटी अबाउट एचडीएफसी बैंक? एचडीएफसी बैंक में एक अनसर्टेनिटी ये था कि एचडीएफसी के दो स्टॉक लिस्टेड थे, एक एचडीएफसी लिमिटेड और एक एचडीएफसी बैंक। Anybody know? Does anybody knows what is the difference? What was the difference between HDFC Bank and HDFC Limited? ये दोनों निफ्टी के स्टॉक्स हुआ करते थे एक जमाने में, बट अब अगर आप गूगल करोगे तो HDFC Limited HDFC बैंक के साथ मर्ज हो गया है। बट टेल मी, what was HDFC Limited and HDFC Bank into? What is the difference between them? Anybody can tell? No one. कोई बात नहीं। Anyone? Yes, Aryan? सर HDFC आई गेस पेरेंट कंपनी था, HDFC लिमिटेड HDFC बैंक का। ठीक है, पेरेंट कंपनी था। सो एचडीएफसी का जो हाउसिंग लोन का डिपार्टमेंट था वो एचडीएफसी लिमिटेड संभालता था। बाकी पूरा बैंकिंग चैनल जो भी है, डिपॉजिट करना, इंश्योरेंस करना, म्यूचुअल फंड करना या जो भी प्रोसेस करना, वो एचडीएफसी बैंक के अंदर आता था। तो एचडीएफसी के प्रमोटर्स ने एक डिसीजन लिया कि हम एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक को मर्ज करेंगे। अच्छा, क्यों ऐसे मर्ज करेंगे? क्योंकि इंटर क्रॉस बिजनेस होने का पॉसिबिलिटी बहुत हाई होता है। मान लो एग्जांपल, क्लब रोड में एचडीएफसी लिमिटेड का ऑफिस है, और है भी, एचडीएफसी लिमिटेड का ऑफिस क्लब रोड में है, एचडीएफसी बैंक का ऑफिस हमारे नर्तकी में है। अब अगर मुझे लोन लेना है एग्जांपल, तो एचडीएफसी बैंक वाला मुझे एचडीएफसी लिमिटेड भेजेगा, तो मुझे ये लोकेशन से वो लोकेशन जाना पड़ेगा। उल्टा देखते हैं, अगर मुझे एचडीएफसी बैंक में खाता खोलना है तो एचडीएफसी लिमिटेड खाता खोल के नहीं देगा। अगर मुझे खाता खोलना है तो मुझे क्लब रोड से किधर आना पड़ेगा? नर्तकी। सो आई हैव टू ट्रैवल। तो कंपनी ने क्या डिसीजन लिया? विल मर्ज बोथ। इफ वी मर्ज बोथ, क्या होगा? इंटर क्रॉस बिजनेस का पॉसिबिलिटी बढ़ेगा। इससे क्या होगा? मैं क्लब रोड पे रहने वाले लोग विल डिसाइड दैट अरे बैंक इज नियर बाय, आई विल ओपन एसबीआई अकाउंट हियर। बट अगर वही एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज नहीं होता तो क्या क्लब रोड वाला पर्सन वुड ओपन एन अकाउंट देयर? नो। करेक्ट? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? Yes, sir. समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। एनीबडी एनी डाउट? तो मर्ज होने से क्या फायदा हुआ? मर्ज होने से यह फायदा हुआ कि इंटर क्रॉस बिजनेस मिलता है। तो दैट इज व्हाट एचडीएफसी बैंक टुक अ डिसीजन। बट उन्होंने जब अनाउंसमेंट किया और जब मर्जर हुआ तो वो मर्जर का प्रोसेस इतना स्लो हुआ। क्यों? सारे अकाउंट्स चेंज करने पड़ेंगे, सारे डिपार्टमेंट्स के, होम लोन के जितने भी डिपार्टमेंट वो एचडीएफसी बैंक के साथ मर्ज करने पड़ेंगे, पूरा आईटी का डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। उस प्रोसेस में कंपनीज को ट्रांजिशन करने में टाइम लगा, एंड दैट इज द रीजन फॉरेन इन्वेस्टर्स और आवर नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैड कि अरे बाबा इसमें अनसर्टनिटी है, कितना टाइम लेगा, पहले मर्ज होगा, फिर बिजनेस आएगा, बिजनेस आने के बाद फिर उनका बिजनेस ग्रो करेगा। सो पीपल वर अनसर्टन अबाउट द स्टॉक। दैट इज वाई एचडीएफसी बैंक इतने साल में रैली नहीं है। सेम आईसीआईसीआई बैंक, कासा रेशियो बढ़ने लगा। एक जमाने में एनपीएस ऑफ आईसीआईसीआई बैंक वाज सो हायर, स्लोली एनपीएस नीचे आने लगे। नेक्स्ट, आईसीआईसीआई बैंक बहुत सारे ब्रांचेस खोलने लगे, उससे क्या होता है? कासा रेशियो बढ़ता है। दैट्स द रीजन स्टॉक रैलीड। सो बैंकिंग सेक्टर में हमने 2-3 चीजें डिस्कस की। हमको कासा रेशियो देखना है, हमको एनपीएस देखना है, हमको प्रॉफिटेबिलिटी देखना है,
क्या कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या नए नए स्टेप्स उठा रही है, एंड ऑल दिस थिंग्स. सो दिस अबाउट अ बिट ऑफ बैंकिंग सेक्टर. सो वी सॉ बैंकिंग सेक्टर, वी सॉ आईटी. अच्छा, आई विल टेल यू वन मोर थिंग. आई जब सारे स्टॉक्स रैली किए थे कोविड के बाद, आईटी स्टॉक्स, जब कोविड खत्म हुआ तो आईटी स्टॉक्स का पीक हो गया. वहां से डाउनफॉल 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 आने लगा. धीरे धीरे न्यूज आने लगी कि थिंग्स विल स्टार्ट विद रिस्पेक्ट टू एआई. एआई आएगा तो आईटी कंपनीज को बिजनेस आएगा कि नहीं आएगा. फिर वी स्टार्टेड फॉलोइंग व्हाट हैपेंस इन अमेरिका. तो अमेरिका का एक बहुत बड़ा कंपनी है एक्सेंचर. तो एक्सेंचर का एक रिपोर्ट आया. एक्सेंचर ने बोला करके, जब एआई आएगा तो आईटी को तभी भी बिजनेस आएगा, और सारा एआई का बिजनेस आईटी वाले को आएगा. तो हाउ इज आईटी सेक्टर डिपेंडेंट? सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू टेल यू. सी, do you have any idea what happened in US in last 2 to 3 years? Can anybody tell you what happened in US with respect? Not, don't tell me with politically. Tell me with economically. Anybody? Sir, interest rate. Correct. See Yeah. here, I just opened. See, Fed see increased what is 5%. shocking. Correct है. US Fed. Does first you should know what is US Fed. बताओ कितने लोगों को पता है US Fed क्या है? उल्टा बोलते हैं, कितने लोगों को पता नहीं US Fed क्या है? सब मुझे. Come सब on, मुझे. speak. If you don't speak, how will you learn? Sir, one that prints money. Sir, Yes. सर हमारे आरबीआई जैसे रहेगा सर. करेक्ट है. तो हमारा जैसा आरबीआई है, जैसा ही उनका यूएस फेड है. तो आरबीआई का काम क्या है मैम? मैम आरबीआई का काम क्या है गायत्री मैम? सर कंट्रोल्स द इंटरेस्ट. क्या इंटरेस्ट लिमिट रेट. ओके. है सर. वो तो आरबीआई का तो बहुत सारे मनी रूल्स है. कंट्रोल करता है सर हाँ, बेसिकली. बेसिकली देश का अर्थव्यवस्था चलाता है. इट कंट्रोल्स द डिसीजन मेकिंग ऑफ हाउ द थिंग्स शुड प्रोग्रेस विथ रिस्पेक्ट टू बैंकिंग्स अक्रॉस इंडिया. कौन हमारे पूरे बैंकिंग चैनल में क्या सिस्टम चलना चाहिए, दैट इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई. सेम द जस्ट जेरोक्स कॉपी ऑफ आरबीआई यूएस में, वो है यूएस फेड रिजर्व. ओके. सो यूएस मतलब एवरी डे, एवरी 1 वीक यू विल सी इन एनी स्टॉक मार्केट के चैनल में they will comment about US Fed. So you see here what is written here. The US Fed Reserve cuts interest rate by 50 bips. 50 bips समझ में आता है, 50 basis points. 50 bits on परसों, लास्ट वीक की बात है, September 18, 2024, bringing the federal rate range from 4.75 to 5%. मतलब क्या? You see here, this was the first time the Fed adjusted rate since July 2023, when it raised from 25 bips point to a 23-year high. Can you imagine that? मतलब क्या? एक जमाने में what was US Fed, you will get what was interest rate, US interest rate in 2020 ड्यूरिंग पैंडेमिक. मजा देखो अभी. The US Fed rate effectively drastically lowered from in between February and it dropped from, read the standard, it dropped from 1.85% in Feb to that year to 0.65%. Can you imagine? मतलब अगर हम 100 रुपए लेते हैं तो 100 रुपए वाला इंटरेस्ट 1 साल के बाद, अगर मैं बैंक में लोन लेता हूँ, यूएस में गया मैं, और यूएस से अगर मैं लोन लेता हूँ तो 100 रुपए 1 साल के बाद, 100 रुपीज आफ्टर अ ईयर आई विल हैव टू पे 101 रुपीज भी नहीं, 100.65 रुपीज हैव टू पे. इट फर्दर वेंट डाउन टू 0.05% इन अप्रैल. मतलब लिटरली जीरो. नाउ माय क्वेश्चन इज फेड वाला इंटरेस्ट रेट क्या करता है, उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है? हाउ एम आई अफेक्टेड? व्हाट फेड डज इन यूएस इज माय क्वेश्चन टू यू.
सर वाई आर वी स्टडिंग, हमको क्यों पढ़ना है फेड क्या करता है, हाउ एम आई रिलेटेड टू इट, कैन एनीबडी आंसर? यस, कोई कमेंट्स, गिव मी सम, कुछ तो कोई तो बात करो। Foreign So because of investments. globalization, the investments are done by them in India also, right? So सो could be one factor. अच्छा, so there is something called as liquidity बढ़ाना, there is something called as liquidity बढ़ाना, मार्केट में पैसा पंप करना. So what does interest rate reduction in interest rate ensures? See, this is very very important. मतलब यूएस का फेड का जो भी डिसीजन होता है बहुत हद तक हमारा शेयर मार्केट उस डिसीजन के ऊपर चलता है. सो विल गेट इनटू अ बिट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव विथ एग्जांपल्स विल टेक. जब यूएस में फेड ने अपना इंटरेस्ट रेट घटाया, दे पम्प्ड heavy money into the system. When they pumped heavy money in the system at low interest rate, तो इसका मतलब क्या, मेरे पास पैसा है, अब मैं बैंक से लोन उठाऊंगा, आई विल टेक लोन. अच्छा, वाई विल आई टेक लोन? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बिजनेस आइडिया, आई विल से, सी आई हैव गॉट ब्रेन्स बट आई डोंट हैव फंडिंग. सो व्हाट विल आई डू? आई विल गो टू बैंक, आई से आई वांट अ लोन. जब मैं लोन लूंगा, एंड व्हेन लोन इज अवेलेबल एट लोअर इंटरेस्ट रेट, माय ब्रेन सेज, अच्छा कितना इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है, 1% पे दे रहा है, मेरा बिजनेस आइडिया साल का 20%, चलो 10% करेगा, 10% करेगा, तो मैं बैंक से लोन उठा लेता हूँ. अगर मैं बैंक से लोन उठाऊंगा, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली, आई विल टेक लोन फ्रॉम द बैंक, आई विल स्टार्ट माई बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, विल टेक इंडिया इनटू कंसिडरेशन. ओके, इंडिया का इंटरेस्ट रेट केम डाउन टिल 7% to 6.5. Example, we'll take one example, home loan. When I bought a home, my interest rate from HDFC was करीब 6.9 to 6.7%. Okay. Eventually, today I am paying 8.75%. Okay. Same if you take a personal loan or business loan. Let us say when COVID hit, interest rate were low. I got loan at 5%. I had a business, I started a business, my business margin were 15% or 13%. So my brain says 13% पे I'll do business, 5% से I'll pay the bank. So I'll get 8%. So I'm happy. Now what happens in that process? What happens in that process? When you take a loan, for example, I have a manufacturing company. When I have a manufacturing company, I'll start constructing, I'll take land, I'll employ people. Listen carefully, huh? I'll employ people, I'll get cements, I'll get steel, I'll hire laborers, I'll start digging, I'll start making the base, I'll start digging, I'll call JCBs. So first important point, स्टील वाले को बिजनेस मिला, सीमेंट कंपनी को बिजनेस मिला, जेसीबी कंपनी जो डिगिंग करता है उसको बिजनेस मिला. फिर मैंने कंस्ट्रक्शन चालू किया काम, फिर आई स्टार्टेड विद बेसमेंट्स. बेसमेंट करूंगा, फिर दीवार बनाऊंगा, दीवार बनाने के बाद मैं पेंट करूंगा, आफ्टर पेंटिंग में फ्लोरिंग करूंगा, फिर मैं सैनिटरी वेयर डालूंगा, फिर मैं पंखा डालूंगा, फिर मैं बल्ब डालूंगा. What is happening? Due to your one decision that you want to start a plant, your money starts circulating and gets pumped into different sectors. क्या तुम्हारे वजह से इन सारे सेक्टर्स को बिजनेस मिला? ट्रू फॉल्स? True. Yes, sir. अब इससे क्या होगा, जब you take one decision and you are transferring and giving business to so many sectors, आपने लेबरर को हायर किया, उस लेबर को मान लो कि अगर मैं घर नहीं बनाता, अगर वो बेरोजगार रहता एग्जाम्पल के लिए, तो उसके घर में पैसा नहीं आता तो XYZ होता. चलो पैसा आ गया, आपने बिजनेस दिया, वो आपके पास काम किया 6 महीने के, आपने उसको हर दिन डेली वेजेस के हिसाब से पैसा दिया,
उसके घर में पैसा आया। जब वो पैसा आया तो क्या बोलेगा घर में? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रोज रोटी सब्जी खाते हैं, वी ईट एवरीडे रोटी सब्जी, आज कुछ तला हुआ खाएंगे। अब तला हुआ खाएंगे, मिठाई खाएंगे, तो क्या मिठाई वाले को बिजनेस मिला? तला हुआ खाएंगे यानी अदानी ऑयल को बिजनेस मिला। So what is happening? By lowering the interest rate, गवर्नमेंट को क्या मिलता है? By lowering the interest rate, people like us across the globe will start taking loans. Because my idea, say I'm able to generate 13-14%, but I'm getting loan at lower rate. So the risk, the probability of risk is less because the margin is big, because interest rate is low. When interest rate is low and मेरे को पता है मैं 15% पे धंधा करूंगा, then the probability of difference of that percentage of profitability is more. So I'm ready to take that risk क्योंकि मेरे को मार्जिन दिखता है थोड़ा सा सेफ्टी का मार्जिन दिखता है करके मैं लोन लूंगा। अब लोन लेने से क्या हो रहा है? जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट लेस करता है, people start taking loan. When people start taking loan, what will happen is that आपका पैसा इकोनॉमी में, कंट्री में सर्कुलेट होता है। इतने सारे सेक्टर्स की बात की, पेंट वाला, सो मेनी थिंग्स आई सेड, लेबर, तेल आया, सो मेनी थिंग्स आई सेड। इससे क्या होता है? इकोनॉमी में पैसा पंप होता है। जब इकोनॉमी में पैसा पंप होता है तो सबको बिजनेस आते हैं। दैट इज व्हाई इंटरेस्ट रेट आर मेड टू फॉल। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? व्हाई इंटरेस्ट रेट इज मेड टू फॉल? टू बूस्ट द इकोनॉमी। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But then why is it again raised, sir? करेक्ट, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इंटरेस्ट रेट वापिस से ऊपर क्यों उठाया? वही हम कोविड का डिस्कस कर रहे हैं। कोविड के टाइम सारे बैंकिंग वाले कंपनीज इतने परेशान थे। फेड, बैंकिंग वाले कंपनी नहीं, फेड, सब कंट्रीज के फेड, हमारा आरबीआई ले लो या यूएस का फेड ले लो, धंधा नहीं है, धंधा नहीं है, धंधा नहीं है, एक काम करो इंटरेस्ट रेट गिराओ। क्या होगा? लोग पैसा उठाएंगे। पैसा उठाने से क्या होगा? बोलो बोलो, पैसा उठाने से क्या होगा? लोग जब पैसा उठाएंगे तो क्या होगा? इकोनॉमी में पैसा पंप Liquidity बढ़ जाएगा, sir. हाँ, लिक्विडिटी बढ़ेगा, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगा तो धंधा होगा। कोविड के टाइम धंधा नहीं था तो धंधा को बढ़ाने के लिए फेड वालों ने, आरबीआई वालों ने इंटरेस्ट रेट गिराया। अब मजे की बात देखो, यूएस का हालत क्यों खराब हो गया? अब उन्होंने इतना पैसा पंप किया। यू कैन सी हियर in December 31st, in June 1920, Fed set a rate purchase of at least $80 billion in a month treasuries. मतलब इतना पैसा उन्होंने मंथ में पंप किया है और पंप करते गए दे किसमें? सिस्टम में। सिस्टम मतलब हमारे जैसे सब जगह। अब इससे क्या होगा? जब हमारे हाथ में पैसा आता है, डू यू थिंक इंडिया का पॉपुलेशन, अमेरिका का पॉपुलेशन ले लो, थोड़ा बहुत इंडिया का पॉपुलेशन भी लो, हाथ में पैसे आने पर लोग उड़ाते ज्यादा है कि इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं? पवन सर, उड़ाते ज्यादा है। आपका सैलरी बढ़ गया, आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया कि आपने एक्सपेंसेस बढ़ाए? That's a tricky question. हाँ, सर कार लिया, हमारा भैया है, भैया को पूछेंगे, भैया सैलरी बढ़ने पर घर में टू व्हीलर या कि टू व्हीलर से फोर व्हीलर आए? हम हमारे जीवन में टू व्हीलर से फोर व्हीलर में आए, करेक्ट है ना? Right. इसका मतलब क्या हो रहा है? जब हमारे हाथ में पैसा आता है हम स्पेंड करते हैं और इन्वेस्ट उतना नहीं करते हैं। सेम ऐसा ही हुआ यूएस में, इंडिया में पैसा हाथ में आने पर स्पेंडिंग बढ़ गया। अब आप एक बात बोलो, स्पेंडिंग बढ़ गया तो क्या फर्क पड़ता है? क्या हुआ? अच्छी बात है ना, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। प्रॉब्लम किधर है? कैन एनीबॉडी टेल प्रॉब्लम किधर है? स्पेंडिंग बढ़ने पर प्रॉब्लम किधर है? इकोनॉमी तो ग्रो हो रहा है ना। प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कोई गेस कर सकता है? इंडिविजुअल को प्रॉब्लम है जो स्पेंड कर रहा है। क्या प्रॉब्लम है? सर वो डेप्रिशिएटिंग एसेट परचेज। रॉन्ग, मेरे को वो नहीं सुनना है। मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा है, अक्रॉस हम वाइडर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बात कर रहे हैं। एनीबडी?
Non-performing assets बढ़ जाएगा because of lending and non-repayment. नहीं वरुण भाई, पैसा तो इतना पंप किया है ना सिस्टम में, तो पैसा भरने की तो हैसियत रखते हैं। आई टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज, अब सबके घर में मिठाई खाना है, पैसा बहुत है, अब सब 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 लोअर मिडिल क्लास लोग क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल लेता हूँ, सच एग्जाम्पल नहीं है, बट एक एग्जाम्पल से आइडिया आता है। क्या आएगा, अब सबके घर में पैसा है, सबको होटल जाना है, करेक्ट है। घर में बहुत पैसा आया, सबको बाहर नहीं खाना है, होटल खाना है, सबको स्पेंड करना है। होटल जाएगा तो क्या, जो पहले जो एक एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑयल का, तेल का लेते हैं, तो सबको तला हुआ खाना है, सब होटल में तल, एग्जाम्पल होटल ले लो, या लोअर मिडिल क्लास में घर में तेल ले लो। इससे क्या होगा, क्या तेल का डिमांड ज़्यादा होगा, बट तेल का प्रोडक्शन तो सेम ही है ना, पर डिमांड ज़्यादा हो गया ना। प्रोडक्शन इज सेम बट रिक्वायरमेंट इज मोर। एग्जाम्पल, मैं किराना दुकान लेके बैठा हूँ, मैं किराना दुकान लेके बैठा हूँ, और लोग आ रहे हैं मेरे पास तेल का डब्बा खरीदने के लिए। 1,000 रुपये लीटर, 1,000 रुपये का डब्बा है, 1,000 रुपीज़ द कॉस्ट। अब मेरा माल बिक गया, सेल हो रहा है ना, सबके हाथ में पैसा है, सबको तेल का बाटली लेके जाना है घर पे, सब लोग तेल के डब्बे लेके जा रहे हैं। अब मेरा माल खत्म हो गया, मैं मेरे सप्लायर को फ़ोन करता हूँ, मेरे को चाहिए तेल का डब्बा। सप्लायर बोलता है माल खत्म हो गया है, मेरे को मान लेते हो कि पंजाब से मंगाना पड़ेगा। ओके, कर्नाटक एग्जाम्पल है, कर्नाटक में खत्म हो गया, पंजाब से मंगाना पड़ेगा, बट भाव ज़्यादा लगेगा। मैं बोलता हूँ होने दो, भाव ज़्यादा होने दो। कितना है, मेरे को अगर मैं अगर 1,000 में बेचता था, अज्यूम करो मेरे को 900 में आता था, 900 में आता था, तो 900 के बदले मेरे को 1,000 में आएगा। मैं बोलता हूँ सप्लायर को मंगा दे, 900 क्या 1,000 है, 1,000 में मंगा दे। तो मैं क्या 1,000 का 1,000 में बेचूंगा कि ज़्यादा में बेचूंगा, ज़्यादा में बेचूंगा, ज्यादा ऑब्वियसली। तो 1,000 का मैं फिर एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद तुम लोग वापस मेरी दुकान पे आओगे, तेल का डब्बा है, मैं बोला हाँ, बट भाव बढ़ गया है। कितना हो गया, 1,000 नहीं, अब 1,100 है, 1,100। तो बोले भाव बढ़ गया, हाँ भाव बढ़ गया, कि डिमांड इतना है तो भाव बढ़ गया। ओके, एक ही मिनट सर, एक 10 मिनट क्लास खत्म करके लगाता हूँ। ओके, तो भाव बढ़ गया तो 1,100 हो गया, तो मैं 1,100, मुझे मालूम है सामने कस्टमर 1,000 को 1,100 देने के लिए रेडी है, तो आई सेल इट 1,100। बट ऐसे डिमांड बढ़ते गया तो भाव बढ़ते जाएगा। बट मुझे एक बात बोलो, आपके घरों का स्पेंडिंग जो डेली जो सिस्टम चलता है घर का, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी है, जिस स्पीड से आपका घर का एक्सपेंसेस का कॉस्ट लगता है, क्या उसी स्पीड से आपका जॉब का सैलरी भी बढ़ता है? नहीं। नहीं बढ़ता ना वरुण भाई। घर के खर्चे 5 साल में और अभी में फर्क है, उसी परसेंटेज से क्या आपका सैलरी भी बढ़ा है? पवन भाई, हाँ हाँ ना? Good Yes, question. yes, correct, correct. Very good question, Akshay. नहीं नहीं बढ़ा ना, नहीं बढ़ा, इसका मतलब क्या, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो व्हाट इज द आउटकम, व्हाट इज द आउटकम ऑफ लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट? जब इंटरेस्ट रेट लो होगा, इकोनॉमी में पैसा पंप होगा, बट इट कम्स विथ अ कॉस्ट। एंड व्हाट इज दैट कॉस्ट? दैट कॉस्ट इज इन्फ्लेशन। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। यस सर। सच में Yes, सब sir. फंडामेंटल एकदम क्लियर हुआ। इंटरेस्ट रेट का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। सो इट्स लाइक अ सी सॉ थिंग। एवरी क्वार्टर टू क्वार्टर RBI हैज टू टेक लॉट्स ऑफ डेटा फ्रॉम द कंट्री, एंड द RBI हैज टू एनालाइज कि मेरे इस डिसीजन से अब क्या होगा। सो दे कीप प्लेइंग विथ थिंग्स अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। Lowering the interest rate will boost the economy, but at the cost of महंगाई। महंगाई होगी, महंगाई होगी, सैलरी नहीं बढ़ेगी, सैलरी उतनी होगी, तो तुम क्या बोलोगे, बंद करो ये सब तेल तेल का खाने का, चुपचाप रोटी सब्जी दाल चावल खाओ। दैट इज व्हाट हैपेंड इन यूएस। यूएस में लोगों में इतनी महंगाई बढ़ गई, इतनी महंगाई बढ़ गई कि लोगों के पास पैसा कम पड़ गया, जो डेली का खर्चा चलता था उससे कई गुना ज्यादा चलने लगा। तो उसका क्या आउटकम है? इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? यू टेल मी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा?
लोगों Spending का कम खर्चा कट जाएगा। स्पेंडिंग विल रिड्यूस, स्पेंडिंग विल रिड्यूस, तो उसका आउटकम क्या है? डिमांड विल रिड्यूस। डिमांड विल रिड्यूस, डिमांड विल रिड्यूस, उसका आउटकम क्या है? interest rate का वो दूसरे फेज में मैन्युफैक्चरिंग विल बी अफेक्टेड सर। करेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग या कंपनी विल गेट अफेक्टेड, कंपनी विल अफेक्टेड, उसका आउटकम क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी इज अफेक्टेड। प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्टेड, कंपनी को धंधा कम आएगा, कंपनी को धंधा नहीं आएगा तो उसका आउटकम क्या है? Jobs. मार्केट में Stock करेक्शन गिरेगा। आएगा। करेक्ट, जॉब जाएगा, जॉब जाएगा, जॉब जाएगा तो क्या आएगा? रिसेशन आएगा। करेक्ट है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द साइकिल? Yes, तो sir. रिसेशन आएगा। समझा सर। तो ये चीजें ऊपर नीचे विल कीप ऑन हैपनिंग। तो गवर्नमेंट चाहता है रिसेशन भी नहीं आया, गवर्नमेंट चाहता है महंगाई भी नहीं बढ़े, बट गवर्नमेंट चाहता है कि इकोनॉमी भी ग्रो हो। So that is a cycle where you have to keep playing with the interest rate. That is why Fed वालों ने इंटरेस्ट रेट जो कोविड के टाइम 0.01% था, 0.05% था, वो चला गया। What was Fed rate? Last to last week Fed rate was 5%. You imagine 0% से 5% उन्होंने बढ़ाया। अब 5% बढ़ाएगा इंटरेस्ट रेट। अब उल्टा जाते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? spending कम होगा स्पेंडिंग कैसे कम होगा? Cost of लोग पैसा कम उठाएंगे। लोग पैसा कम उठाएंगे। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता था मैं 2% पे उठा के 12% का प्रॉफिट करूंगा, अब मेरे को प्रॉब्लम है वो इंटरेस्ट रेट 5% पे आ गया है, तो द मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मी मेकिंग प्रॉफिट कम हो गया। तो मैं सोचूंगा नहीं नहीं इतना महंगा नहीं लेना है। अब घर का इंटरेस्ट रेट 9.5 पे चल रहा है, जो 6.9 पे था। नहीं नहीं इतना इंटरेस्ट रेट मैं नहीं दे पाऊंगा, एक काम करते 1 साल और भाड़े से रहते हैं, नेक्स्ट ईयर हम घर बांधेंगे, तो भाड़े से रहेंगे। जो मैं घर खरीदने वाला था, अब मैं घर का सोच डीले कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि इकोनॉमी में जो मैंने डिमांड क्रिएट किया था, लिक्विडिटी डाल के डिमांड क्रिएट किया था, इंटरेस्ट रेट बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ आई डिमांड इंक्रीज द कम हो इंटरेस्ट रेट? जाएगा। सॉरी मैम, डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड कम होगा, उससे उसका आउटकम क्या होगा? When people are इन्फ्लेशन not ready, when people are not able to sell at a higher rate, they will also sell at cost to लोअर cost. रेट। करेक्ट है मैम? तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना इज टू एंश्योर दैट महंगाई नीचे आए, इंटरेस्ट रेट घटाना मींस इकोनॉमी में बूस्ट करने के लिए, एक कंट्री को ग्रो करने के लिए लिक्विडिटी पंप करना। इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक एंड lowering is clear to all? yes. Now our discussion should be इंटरेस्ट रेट ऊपर या नीचे होने से मेरे कौन से सेक्टर को हिट करेगा प्रॉफिट, कौन से सेक्टर को हिट करेगा लॉस। दैट इज इंपॉर्टेंट नो। इंटरेस्ट रेट का डिसीजन मेरे कौन से स्टॉक को अफेक्ट करेगा। बोलो इंटरेस्ट रेट, one two more examples I will take and end the class. Okay, इंटरेस्ट रेट जब घटा तो लोगों के हाथ में पैसा आया, यूएस की बात कर रहा हूं। जब लोगों के हाथ में पैसा आया तो कॉर्पोरेट कंपनीज ऑफ यूएस ने, डू यू नो आवर इंडियन आईटी कंपनीज वर्क mainly due to यूरोप एंड यूएस। मेनली बिजनेस ऑफ इंडियन आईटी कंपनीज यूरोप और यूएस से आता है। अब यूरोप और यूएस कंपनीज के पास जब इंटरेस्ट रेट लो है तो क्या वो पैसा उठाएंगे? विल दे टेक मनी एट लोअर इंटरेस्ट रेट? यस नो? Yes, sir. यस, यस है। तो जब कॉर्पोरेट के पास पैसा आएगा
तो क्या वो हमारे इंडियन कंपनीज को TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL को प्रोजेक्ट्स देंगे कि नहीं देंगे? देंगे सर। देंगे। जब वहां पे प्रोजेक्ट्स देंगे तो क्या उनके लोअर इंटरेस्ट के वजह से मेरे IT कंपनीज को, क्या IT स्टॉक्स को फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा। होगा। अब देखो मैंने कैसा ट्रिक किया, फायदा होगा। करेक्ट, दिस इज वेरी क्लियर। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो कॉर्पोरेट US के कंपनीज के पास, इसीलिए कोविड के टाइम, पॉज, इसीलिए कोविड के टाइम IT स्टॉक भागे। ट्रू, 100% कोरिलेशन समझ में आ रहा है? यस। करेक्ट। अब कोविड खत्म हो गया, महंगाई आ गई यूएस में। यूएस में महंगाई आ गई तो यूएस के फेड वालों ने क्या किया? व्हाट डिड यूएस फेड टुक अ डिसीजन? फेड टुक अ डिसीजन दैट आई विल हाइक द रेट। व्हेन दे हाइक द रेट, व्हाट वाज द आउटकम? कंपनीज which had planned to give projects to Indian IT companies, did they pause or they continue to give business to IT companies due to hike in interest rate? पॉज और पोस्टपोन सर। Pause or postponed it means due to rising interest rate, due to rising interest rate, क्या हमारे IT कंपनीज को अफेक्ट हुआ? यस सर। देखो ग्राफ, फेड ने कब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया? फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लगे कोविड के बाद। कोविड के बाद का इन्फोसिस का ग्राफ देखो, कोविड के पहले इन्फोसिस का ग्राफ देखो। देखो कोविड आया, कोविड खत्म हो गया, 1800 भाव था, 1800 वाज द रेट, इट वेंट टिल 1800, कोविड गॉट ओवर, इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे, इन्फोसिस को मार बैठा, स्टॉक परफॉर्म ही नहीं किया है, कुछ नहीं किया। अब मुझे पता लगा कि मैं एवरी क्वार्टर टू क्वार्टर फेड को ट्रैक करता हूँ, इनफैक्ट एवरी वीक ट्रैक करता हूँ फेड क्या कर रही है। जब मुझे पता लगा IT कंपनीज के लिए अब अच्छा दिन आएंगे क्योंकि फेड ने इंटरेस्ट रेट घटाने वाले हैं। करेक्ट, फेड ने डिसीजन, ये बात चल रही थी दिसंबर से, लास्ट ईयर दिसंबर से, फेड विल रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, फेड विल रिड्यूस इंटरेस्ट रेट। तो मुझे मेरा ब्रेन हिट किया, जब फेड इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेगा हमारा IT कंपनी को बिजनेस मिलेगा। तो मैंने क्या किया, इन्फोसिस का स्टॉक उठाया। अब देखो इन्फोसिस का स्टॉक, मैं आई शेयर माय पोर्टफोलियो इन द नेक्स्ट क्लास, मैंने कितना इन्फोसिस के स्टॉक्स उठाए, ओके, क्या भाव पे उठाया, आई शेयर दैट ऑल्सो, मतलब रियल टाइम डेटा, आई एम नॉट फेकिंग, दैट आई शेयर माय पोर्टफोलियो। तो मैंने 1400 पे, 1400 के करीब करीब उठाया था मैंने, तो 1500 1400 पे उठाए, आई थिंक तो मैं पहले ही उठाया था, मैंने 1300 1400 पे लिया था। सी टूडेज रेट 1400, just you saw in the previous slide, Fed on 18 September Fed ने इंटरेस्ट रेट घटाया। सी माय इन्फोसिस का स्टॉक फ्रॉम 1400 इट वेंट टू 1900। करेक्ट। तो क्या मैंने सिर्फ 4 महीने में 25% का रिटर्न बनाया? 6 महीने में, 7 महीने में 25% रिटर्न बनाया, वो भी ए रेटेड स्टॉक, थर्ड स्टॉक नहीं। इन्फोसिस अ निफ्टी स्टॉक, इट इज ए रेटेड स्टॉक। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। Clear? Is concept clear to you all? So this is one theme we studied today, studying IT in very detail and understanding the interest rate and how interest rate has an effect on boosting the economy as well as it has an effect on inflation. Correct? ठीक है? Any questions? Any questions? Any doubts? Any questions? Any doubts? सर ओवरऑल समझ में आया, अभी डाउट्स आने के लिए टाइम है सर। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट कुछ तो नया सीखे मैम, आपको यस एक थिंग तो पता चला कि थिंग्स कैसे वर्क करती है। यस सर। ओके, ठीक है, डन देन। इफ नो क्वेश्चंस आस्क्ड, विल एंड द क्लास फॉर टुडे। डन, दैट्स इट। सर आई जॉइन द क्लास लेट, प्लीज रिकॉर्डिंग शेयर कीजिए हाँ सर। हाँ, रिकॉर्डिंग है, चालू है मैम, नो इश्यूज एट ऑल। ओके थैंक ठीक यू। है, कर देंगे। थैंक यू ऑल। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Good sir. night. Good night. Thank you, Night, wow. sir. Good night. Okay.